कुछ भी डाउट है, you can stop me, you can ask me anytime. Okay, so operators in Python. सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ ऑपरेटर्स को, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ प्रोग्रामिंग इन पाइथन. पाइथन स्पेसिफिक डेफिनेशन ये, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स और कीवर्ड्स. ऑपरेटर्स कीवर्ड्स भी होते हैं, कीवर्ड्स दैट designate some type of computation. कुछ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं. नाउ ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स. सो ऑपरेटर सिंबल्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं और कीवर्ड्स भी हो सकते हैं. मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. सपोज एडिशन करना है, एडिटिव ऑपरेटर, इट इज अ सिंबल, सो प्लस इज अ सिंबल. देन फॉर द combination of symbols we have is equal to operator. So this is a combination of two symbols, equal and equal. So two assignment symbols we can say. So this is a combination of symbol, that is equal operator. Then there are compound operators. Compound operators भी combination होते हैं symbols का. So there is another example, plus assignment. This is also combination of symbols. And keywords Q, there is a membership operator. Membership operator, that is in is a keyword in Python. There is identity operator, is keyword. Then logical operators में भी keywords का use होता है, and or not. So operators are special symbols, combination of symbols or keywords that designate some type of computation. Like अगर आप additive operator का use करते हैं, so it is nothing but addition operation, that is arithmetic operation. So every operator has some meaning and it performs some type of computation. Okay. So you can combine values and operators to form expressions. Suppose मेरे पास दो values है, A assignment operator 10, B assignment operator 20. So this A and B we can use in an expression. We can form an expression using these two values and an operator. सपोज मैं मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर का यूज करता हूं, ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बी. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन क्या होता है एंड एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको आगे बताऊंगा. एंड रिजल्ट को मैं असाइन करता हूं इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट. ओके, सो दिस ए एंड बी आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स. ए एंड बी को क्या बोला जाता है? ऑपरेंड्स. सो हियर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स and asterisk symbol is an operator which represents multiplication operator. Okay, so there are three types of operators in Python. There are three types of operators in Python. First one is unary operator, then binary, and then we have ternary operator. Ternary operator. Unary operator, as the name suggests, it operates on one value, one operand. Okay, unary operator operates on one value. Binary operator by represents two. ये दो values के ऊपर, दो operands के ऊपर काम करता है. Ternary operator तीन operands के ऊपर काम करता है. So in this session we'll only talk about unary operator and binary operator. Ternary operator के लिए हमें if else keywords को सीखना पड़ेगा. We'll talk about it in future. So unary operator का example है, example of unary operator is negation of 10. So this is a bitwise operator. ये bitwise operator है. ये क्या करेगा? इस 10 की बाइनरी वैल्यू फाइंड करेगा इंटरनली एंड देन एवरी बिट को निगेट करेगा. अगर 0 होता है तो 1 करेगा, 1 होता है तो 0 करेगा एंड देन जो भी उस बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन है उसका वैल्यू हमें रिटर्न करेगा. सो 10 को कन्वर्ट किया जाएगा इंटरनली बाइनरी में. जो भी बाइनरी आएगा, लेट्स कंसीडर 10 का बाइनरी आता है. बाइनरी अगर आपको फाइंड करना है, यू कैन यूज द bin built in function. So I'll use here bin of 10. So bin binary of 10 and मुझे बाइनरी मिल गया. 0b
दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 1010 1010 ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी है, सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई every binary value is preceded with this 0b prefix. So 1010 is the binary representation of the value 10. Then हर एक digit को negate किया जाएगा, will get 0101. And then 0101 का अगर आपको integer value find करना है, so you can write in quotes 0b which represents binary and pass 0101 invalid literal for int. So remove these quotes. What I'll do, because it is not understanding this quotes, 0b 0101 and we got 5. okay, so 5 मिल गया, so return में हमें 5 मिल जाएगा for negate of 10. so this is an example of unary operator. Binary operator, this is an example of binary operator which works on two operands. Ternary operator we'll see in future. You can also create your own operator. आप खुद के ऑपरेटर्स भी बना सकते हैं पाइथन में. हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग. उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद का ऑपरेटर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड खुद के कंप्यूटेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं. वी हैव बिलो ऑपरेटर्स इन पाइथन. बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे इस सेशन में. सो पहला टाइप का ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसमें सारे बेसिक ऑपरेटर्स आते हैं लाइक एडिटिव ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोवर डिवीजन एंड देन एक्सपोनेंशिएशन. देन असाइनमेंट ऑपरेटर. देन वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स. देन वी हैव logical operators, then identity operators, membership operators. Seventh, we have concatenation and repetition operator. ये सेपरेट टाइप नहीं है, लेकिन जब आप एडिटिव ऑपरेटर का एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर का यूज स्ट्रिंग्स के साथ करते हैं तब कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन होता है रिस्पेक्टिवली. देन वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स. ओके, सो इतने सारे ऑपरेटर्स है पाइथन में. एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स. अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बिटवाइज ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर पाइथन स्पेशल ऑपरेटर्स. सबसे पहले इनको क्रिएट किया गया था पाइथन में. देन देयर आर लैंग्वेजेस लाइक पर्ल आ गई जिसने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स को पिक किया है फ्रॉम द पाइथन. सो पाइथन में इतने सारे ऑपरेटर्स हैं. आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स को फर्स्ट पाइथन में इंट्रोड्यूस किया गया था. Any question till now? No questions, right? No questions. Okay. Now the question is, what is the difference between regular Python statement and an expression? So what is Python expression? Simply. देखो सिंपल है. जो स्टेटमेंट कुछ वैल्यू रिटर्न करता है उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा पाइथन एक्सप्रेशन. अ स्टेटमेंट विच रिटर्न्स सम वैल्यू और विच परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड आफ्टर कंप्यूटेशन इट रिटर्न सम वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो यहां पे अगर आप लिखते हैं 10 + 20, सो ये एक्सप्रेशन है बिकॉज इट इज कंप्यूटिंग समथिंग. 10 + 20 30 हो जाएगा एंड 30 वैल्यू आपको रिटर्न करके मिलेगा. सपोज आप फंक्शन कॉल देते हैं, आई एम कॉलिंग लेन फंक्शन लेंथ ऑफ शंतनु. सो ये भी मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है. सो ये एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे 8 वैल्यू मिलेगा. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन. अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, बिकॉज लेन इज अ बिल्ट इन फंक्शन जो मुझे लेंथ रिटर्न कर रहा है, अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कुछ रिटर्न कर रहा है,
तो वो भी एक एक्सप्रेशन है, उसको कॉल करना भी एक एक्सप्रेशन बन जाएगा. सो एनी स्टेटमेंट विच रिटर्न सम वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन इन पाइथन. नाउ एक्सप्रेशन नहीं है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? बेस्ट एग्जांपल इज a हैज वैल्यू 10. सो दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा. इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन इन पाइथन. समझ में आ गया? तो ये बेसिक डिफरेंस है पाइथन एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट में. ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन, बट दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन. जो भी पाइथन स्टेटमेंट कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ओके, वो एक्सप्रेशन है सिंपली. सो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और रिटर्न सम वैल्यू. सपोज आप बिल्ट इन एबीएस फंक्शन को कॉल करते हैं, इफ यू पास -7 इनटू इट, रिटर्न में आपको 7 मिलेगा. इट विल प्रोड्यूस सम वैल्यू, 7 आ जाएगा. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन. प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बट प्रिंट फंक्शन को अगर आप कॉल करते हैं एंड इसमें हेलो वर्ल्ड पास करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन बिकॉज प्रिंट फंक्शन नन रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट. अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट का टाइप चेक करना है, रिटर्न टाइप चेक करना है, यू कैन जस्ट पास इनटू द प्रिंट फंक्शन. देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड अब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूं एंड आई एम पासिंग दिस स्टेटमेंट इनटू द प्रिंट, एंड इसका हमें रिटर्न टाइप मिलेगा. मैं रन करता हूं py ex.py एंड वी गॉट हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया एंड इट प्रोड्यूस सम वैल्यू विच इज नन, इट रिटर्न सम वैल्यू. दैट्स व्हाई इट इज एक्सप्रेशन. लेकिन मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट इसमें लिखता हूं a असाइनमेंट ऑपरेटर 10, a असाइनमेंट ऑपरेटर 10. देखिए टाइप एरर, a इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट. सो प्रिंट क्या कर रहा है? इसे आर्गुमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट. सो दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन एज वेल. Okay, now let's move ahead with arithmetic operators. Arithmetic operators में आता है addition, then subtraction, subtractive operator, subtraction. इसके examples में एकदम डिटेल में कवर नहीं करूंगा. Multiplication, then we have division, then we have floor division, देन एक्सपोनेंशिएशन. ये भी पाइथन स्पेशल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर. अदर लैंग्वेजेस में बिल्ट इन फंक्शंस है और थर्ड पार्टी फंक्शंस का यूज किया जाता है टू फाइंड द पावर और एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वैल्यूज. सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं. वी नो हाउ इट वर्क्स. मैं आपको फटाफट एग्जांपल दिखाता हूं एंड इसे कवर कर देता हूं. सपोज a 10 असाइन करता हूं एंड b को 20 असाइन करता हूं. a plus b, I got 30. a minus b, I got -10. So normal mathematical operation हो गया 200. a divided by b 0.5. So one thing here, division operator returns a float value always, whether operands are integers or float values. सो एडिटिव ऑपरेटर ने इंटेजर वैल्यू रिटर्न किया, सब्ट्रैक्शन ने इंटेजर दिया, मल्टीप्लिकेशन ने इंटेजर दिया, डिवीजन ने एक फ्लोट वैल्यू दिया. सो आई विल राइट हियर अ नोट. डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स अ फ्लोट रिजल्ट. ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आपको इंटेजर्स ही देंगे. इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेंड्स. सपोज यहां पे मैं क्या कर देता हूं, a को नया वैल्यू असाइन करता हूं 10.0. सो पहले 10 था, अब 10.0 है. अब मैं a प्लस b करता हूं. सबसे पहले a एंड b की वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाता हूं. a की वैल्यू क्या है 10.0, b की वैल्यू है 20. अब मैं a प्लस b करता हूं, आई गॉट 30.0. सो एडिटिव ऑपरेटर ने यहां मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया बिकॉज वन ऑफ द ऑपरेंड इज अ फ्लोट. सो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज फ्लोट, the result will be float to avoid the data loss. ये data loss avoid करने के लिए है. So another important note, if at least one of the, कम से कम one of the operand is float, result will be float.
Okay, so addition, subtraction, multiplication and division clear. Division always returns a float value, चाहे ऑपरेंड इंटेजर हो या फ्लोट्स हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोअर डिवीजन. कभी कभी हमें इंटेजर वैल्यू चाहिए फ्रॉम द डिवीजन. यहां हमें क्या मिल रहा है, एक फ्लोट वैल्यू मिल रही है ऑलवेज. फ्लोअर डिवीजन क्या करता है, फ्लोअर वैल्यू रिटर्न करता है. अब सबसे पहले हमें फ्लोअर एंड सील वैल्यूज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, फ्लोअर एंड सील वैल्यूज. सपोज मेरे पास एक नंबर है 3.2. इस 3.2 के नियर अबाउट कौन से दो इंटेजर्स हैं, देयर आर टू इंटेजर्स, 3 लोअर इंटेजर एंड 4 अपर इंटेजर. सो ये दो इंटेजर्स हैं. सो इस 3.2 का फ्लोअर वैल्यू हुआ लेस वैल्यू फ्रॉम दिस टू होल नंबर्स और इंटेजर्स 3. एंड सील वैल्यू क्या हुआ, सील वैल्यू हुआ हाईएस्ट इंटेजर which is 4 here. So for the value 3.2, floor value is 3, seal value is 4. Okay, समझ में आया floor and seal value. So suppose आपके पास कोई वैल्यू है, उसके नियर अबाउट होल नंबर्स को फाइंड किया जाएगा. लोअर वैल्यू को बोला जाएगा फ्लोर वैल्यू एंड हायर वैल्यू को बोला जाएगा सील वैल्यू. अब फ्लोर डिवीजन इस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग दिस सिंबल डबल स्लैश, एंड डिवीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग सिंगल स्लैश. फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इंटरनली डिवीजन परफॉर्म करता है जस्ट लाइक दिस, जैसे वो नॉर्मल डिवीजन के लिए परफॉर्म करता है. एंड सपोज रिजल्ट मिल गया 3.2, उस 3.2 की फ्लोअर वैल्यू रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस एक्चुअल वैल्यू. सो बिहाइंड द सीन नॉर्मल डिवीजन हो रहा है, लेकिन एक और ऑपरेशन उसके साथ जुड़ गया है विच इज return the floor value of that particular value. So मैं यहां डिवीजन परफॉर्म करता हूं. आई एम ओपनिंग अ न्यू आइडियली. आई परफॉर्म 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4 मिल गया मुझे. अब मैं 12 फ्लोअर डिवीजन 4 करता हूं, मुझे 3 मिल गया. सो आई डू 12 फ्लोअर डिवीजन 5 फिर से. देखिए 12 डिवाइडेड बाय 5 मुझे 2.4 मिला, 12 फ्लोअर डिवीजन 5 मुझे 2 मिला. सो लोग इसे इंटेजर डिवीजन भी बोलते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग अ फुल इंटेजर हियर. सो बिहाइंड द सीन क्या हुआ, 12 को डिवाइड किया गया 5 से, 12 डिवाइडेड बाय 5 हुआ एंड रिजल्ट मिल गया 2.4. अब इस 2.4 वैल्यू की जो फ्लोअर वैल्यू है वो है 2. देयर आर टू होल नंबर्स 2 and 3. This is a floor value, this is a seal value, it returns a floor value. So floor value मुझे मिल गया which is 2. Okay? समझ में आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. सपोज यहां पे -12 डिवाइडेड बाय 5 मैं करता हूं, I got -2.4. If I do -12 floor division 5, क्या मिलेगा? हेलो, -2. ओके, मैं आपको यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाय 5 इंटरनली -2.4 नॉर्मल डिवीजन होगा. अब इसकी फ्लोअर वैल्यू रिटर्न करनी है विच आर टू नियरेस्ट इंटेजर्स -2 and -3. व्हाट इज द फ्लोअर वैल्यू? फ्लोअर वैल्यू इज द -3 रिटर्न करेगा. या लोवेस्ट वैल्यू. -2 and -3 में लोवेस्ट क्या है, -3 है. सो इट विल रिटर्न -3. रिमेंबर दिस. बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि फ्लोअर डिवीजन यानी वो क्या करता है, राउंडिंग करता है. राउंडिंग नहीं करता है इस केस में. और -2.4 आ गया, सपोज -2.99 होता है तो कुछ लोग -3 बोल देंगे, -2 बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे राउंडिंग नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग. आपको नॉर्मल डिवीजन करना है एंड देन चेक द नियरेस्ट इंटेजर्स एंड दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है वो डिसाइड करना है एंड लोवेस्ट को रिटर्न किया जाएगा, वो फ्लोअर वैल्यू होगी. सो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज. तो ये कवर हो गया. एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग फ्लोअर डिवीजन को बोल देते हैं इंटेजर डिवीजन. इंटरव्यू में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है. बहुत सारे बोल देते हैं लोग कि फ्लोअर डिवीजन इंटेजर डिवीजन होता है, ऑलवेज इंटेजर रिटर्न करता है, ऑलवेज
ऑलवेज अ वैल्यू रिटर्न करता है विच इज नॉट हैविंग अ डेसिमल पॉइंट इनटू इट. सो मैं आपको यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 5 करके दिखाता हूँ. 2.4. 12 फ्लोर डिवीजन 5. I got 2. Now 12.0 floor division 5 क्या मिलेगा? And you can see 2.0. So it is not integer division. अगर आप ऑपरेंड फ्लोट वैल्यू पास करते हैं तो उस केस में आपको रिजल्ट भी फ्लोट वैल्यू ही मिलेगा. ओके, सो इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड, कौन सा भी ऑपरेटर हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन सा भी ऑपरेटर हो, एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट वैल्यू होता है तो रिजल्ट भी फ्लोट वैल्यू ही होगा. समझ में आया? सो ये यहां पे रख देता हूं. एनी क्वेश्चंस इन फ्लोर डिवीजन? No question. Next we have exponentiation operator, Python special operator, because other languages में exponentiation symbol नहीं है. कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है by using 2 asterisk symbol, and इसका यूज होता है to find the power. यूज क्या है इसका? To find the power of number. Suppose मैं लिखता हूं A exponentiation operator B, so this is like a raised to b, a raised to power b, so this is a raised to power b. अगर आप C की बात करेंगे, अदर लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो देयर आर बिल्ट इन फंक्शंस, पावर फंक्शन है C में, एंड आप पास करेंगे a कॉमा b, सो इट विल बी a raised to b ऑपरेशन. पाइथन में ये ऑपरेटर है. गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर, एक और आइडियली शेल में ओपन करता हूं एंड आई विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स a10 एंड b with 3. a एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर b, आई गॉट 1000. अब मैं एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट वैल्यू पास करता हूं, 10.0 असाइन करता हूं, रीअसाइन करता हूं विथ a. अब a की वैल्यू है 10.0, b की वैल्यू है 3, a exponentiation operator b, I got 1000.0. So again a same point, any of the operator is float, result is float. So this is exponentiation operator in Python. So we covered all arithmetic operators. Any questions still here? एक ऑपरेटर रह गया, मॉड्यूलो ऑपरेटर. देयर इज अनदर ऑपरेटर, 7th वन, मॉड्यूलो ऑपरेटर. मॉड्यूलो ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है बाय यूजिंग परसेंटाइल सिंबल. इसका यूज होता है टू गेट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन. कभी कभी रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसा लॉजिक डिफाइन करते हैं जिसमें हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता है या नहीं. लाइक अगर आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उस केस में आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करना होगा. तो मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 5, तो इस केस में 2.4 मिलेगा. अगर आप नॉर्मली डिवीजन करेंगे तो देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ 2. 12 मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 में करता हूँ, आई गॉट 2, so 2 is the remainder. Any of the operand is float, result is float, 2.0 in this case. So this is a modulo operator which returns remainder. Done? No questions? Yeah, no question. All clear. Now next type of operator is assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, 1 equal symbol. There is a difference between assignment and this is equal to. This is assignment operator, this is comparison operator. So it compares values and it assigns the value to the variable. So जब आप assignment operator का यूज करेंगे, there are two sides. Left hand side जहां पे normally variable होगा, variable और identifier, and then there is a assignment operator, and then right hand side में you can directly write value or object,
और you can also specify expression which will result into a value. आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे फंक्शन कॉल भी रख सकते हैं, जो भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी वो देन असाइन होगी टू दिस वेरिएबल. दिस इज द नॉर्मल सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर डजंट क्रिएट एन एक्सप्रेशन, rather it is a Python statement. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है व्हाट इज एक्सप्रेशन, जो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू प्रोड्यूस करता है. सपोज मैंने ए असाइनमेंट ऑपरेटर 10 लिखा, सो दिस पर्टिकुलर पाइथन स्टेटमेंट डज नॉट क्रिएट एनी वैल्यू, कुछ रिटर्न नहीं करता, ये जस्ट अ नॉर्मल पाइथन स्टेटमेंट है. सो दिस इज अ पाइथन स्टेटमेंट एंड नॉट एक्सप्रेशन. अरिथमेटिक में सभी एक्सप्रेशंस हुआ करते थे. नाउ ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर. नॉर्मल इसका यूज है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेटर इन पाइथन एंड इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू और result of an expression to the variable. Okay, then assignment operator का यूज करके कंपाउंड ऑपरेटर बनाया गया है पाइथन में. कंपाउंड ऑपरेटर. अब कंपाउंड क्यों? आपने कंपाउंड मिक्सचर सुना होगा केमिस्ट्री में. कंपाउंड इस वर्ड का मीनिंग होता है जो टू और मोर थिंग्स से बनता है. सो यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर जो होगा वो अनदर टू और मोर ऑपरेटर से बनेगा. द एग्जाम्पल इज प्लस असाइनमेंट. सो दिस इज अ कंपाउंड ऑपरेटर. देन अनदर एग्जाम्पल इज asterisk which represents multiplication and assignment. So this is a combination of two operators called as a compound operator. अब compound operator का मीनिंग क्या होता है? सपोज मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे मैं लिखता हूं I create a variable num and value assign करता हूं 10 एंड फिर से मुझे क्या करना है, num की वैल्यू अभी 10 है करंटली, num में मुझे 20 ऐड करना है और कंसिडर num का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है. सो व्हाट आई विल डू, num एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर टू फाइंड द स्क्वायर, बिकॉज num सपोज 10 है, it is 10 to the power 2 means I have to give 10 exponentiation operator 2. So I'll write here num exponentiation operator 2 स्क्वायर मुझे मिल गया एंड मैं रीअसाइन करना चाहता हूं विद द सेम वेरिएबल. अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप कंपाउंड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं. चाहे यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर हो, आप एडिशन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग नंबर में 10 + 2 और 12 जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइन करो टू द सेम वेरिएबल, कोई भी ऑपरेटर हो, आप इसकी जगह पर कंपाउंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. कैसे? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस स्टेटमेंट, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको. num में 10 का स्क्वायर आया होगा, ऑलरेडी क्लियर्ड है. राइट हियर I got 100 printed. But instead of writing this particular statement, you can do one thing, num and then asterisk symbol, 2 times asterisk which represent exponentiation operation, and then assignment operator and then 2. okay, what it means, just आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड लिखना है एंड इस एक्सपोनेंशिएशन के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर अटैच कर देना है. दैट्स इट. तो इसका मीनिंग होगा कि परफॉर्म num एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2 एंड असाइन टू द सेम वेरिएबल, जस्ट लाइक दिस. इट इज इक्विवेलेंट टू दिस. एंड देखिए इस केस में भी आपको 100 प्रिंट करके मिलेगा, 100. ओके, दिस बोथ थिंग्स आर इक्विवेलेंट. एक और एग्जांपल देता हूं मैं. example, okay, so what I'll do here, मेरे पास 10 है वैल्यू और मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ num + 20 एंड रीअसाइन करना चाहता हूँ विद द सेम वेरिएबल num. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई विल डू, num + 20 राइट हैंड साइड लिख देना है और वी आर असाइनिंग विद द सेम वेरिएबल, जस्ट यहाँ पे असाइनमेंट लिख देना है. दैट्स इट. सो दिस टू थिंग्स इक्विवेलेंस ऑफ ईच अदर, print num, clear and run. We got the same result, that is 30. समझ में आया? Any questions with the compound operator?
नो क्वेश्चंस? कौन से कंपाउंड ऑपरेटर्स है पाइथन में? देर आर लॉट्स ऑफ थिंग. आप बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, बट जो मोस्टली यूज होते हैं वो है एडिटिव, देन अरिथमेटिक के साथ इसका मोस्टली यूज किया जाता है. देन वी हैव डिवीजन, फ्लोअर डिवीजन, देन वी हैव अभी हमने एक्सपोनेंशिएशन का यूज किया था. यू कैन यूज परसेंटाइल इज इक्वल टू, मोस्टली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इसका यूज किया जाता है. सपोज आप लिखते हैं ए प्लस असाइनमेंट, देखिए यहां पे स्पेस नहीं देना है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा. डोंट गिव द स्पेस. ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर बी, एंड इसका मीनिंग है विच इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी करो एंड रीअसाइनमेंट करो टू द ए. Reassignment करो to the A. That's it. Similarly for all these remaining operators. Oh, you can combine with bitwise also. You can write here, this is a bitwise negation assignment. Okay. So this is also valid. We'll talk about this in future. Now comparison operators. Next one is comparison operators. Comparison operators are used to compare values. ओके, सो इन ऑपरेटर्स में जो ऑपरेंड्स होंगे उन ऑपरेंड्स का कंपैरिजन होगा, एंड बेस्ड ऑन द कंपैरिजन जो भी ट्रूथ वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी. सपोज मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं a इज इक्वल टू बी. अगर ये ट्रू है, सो सपोज a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है. इफ इट इज ट्रू तो मुझे एक बुलियन वैल्यू मिलेगी रिटर्न में विच इज ट्रू. ट्रू का टी कैपिटल होता है पाइथन में. ओके, Python is a case sensitive language, so ये true and ये true different है. Remember this thing. अगर नहीं है इक्वल, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, तो उस केस में मुझे false मिलेगा. कंपैरिजन ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है कंडीशनल्स में. जब आप कंट्रोल सीक्वेंसेस सीखेंगे तब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने के लिए, देन रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज होता है. So there are 6 comparison operators in Python. Important thing is these operators, write a definition here, compares values on either side of them and decides relation, returns Boolean value always, either true or false depending on the truthness or falsity of an expression. So below are comparison operators. पहला ऑपरेटर है greater than, symbol is greater than, then less than, symbol is less than, just opposite of the greater than, then third equal to, 2 times assignment operator, fourth one is not equal to, exclamation mark, and then assignment symbol. This is the notation of not equal. Then we have greater than or equal to, represents greater than और इक्वल टू, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू. लेस देन और इक्वल टू, सो लेस देन ऑपरेटर एंड देन इक्वल टू. लेट्स सी एग्जांपल्स फास्टली. आइडियली ओपन करता हूं. मोस्टली इसका यूज आप इंटेजर्स, फ्लोट्स, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से इनके साथ कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स आल्सो वर्क्स विद स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स के साथ भी वर्क करते हैं. लेकिन जब हम लिस्ट एंड स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करेंगे इन फ्यूचर तब हम इसके बारे में बात करेंगे. देयर इज अ सेपरेट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड बिहाइंड द सीन आस्की वैल्यूज का यूज करके कंपैरिजन होता है स्ट्रिंग्स के केस में. सो वो एक सेपरेट टॉपिक है. अभी सिर्फ हमें इन ऑपरेटर का पर्पस समझना है. विल टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट्स एंड एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स इन फ्यूचर. तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, 10 एंड 20, a and b वेरिएबल्स उनके लिए. ओके, b हैज वैल्यू 20, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है.
अब मैं a इज ग्रेटर देन b का यूज करता हूँ. सो सिंपली 10 बड़ा है 20 से एंड दिस इज ट्रू, सो इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू. ओ सॉरी, 10 बड़ा नहीं है 20 से, दिस इज फॉल्स. 20 ग्रेटर है ना, सो 10 इज ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स है. सपोज मैं लिखता हूँ a इज लेस देन b, सो 10 इज लेस देन 20, दिस इज ट्रू, सो ये ट्रू रिटर्न करेगा. a इक्वल्स b, 10 एंड 20 एक दूसरे से इक्वल है, इट विल रिटर्न फॉल्स. एंड a इज नॉट इक्वल b, इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि 10 एंड 20 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. सपोज मैं यहाँ पे b को वैल्यू असाइन करता हूँ 10 अगेन. नाउ a हैज वैल्यू 10, b हैज वैल्यू 10. अब मैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b करता हूँ. देखिए स्पेस नहीं आना चाहिए, नहीं तो एरर मिलेगा. इस केस में मुझे ट्रू मिल गया. सो a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 10. यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, नीचे लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है. दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ये इंटायर एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट रिटर्न ट्रू. आइदर बड़ा होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली विद द लेस देन, 10 इज लेस देन और इक्वल टू. तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं वही इस ऑपरेटर्स का मीनिंग डिपिक्ट करता है. रिमेंबर दिस थिंग. एनी क्वेश्चंस कंपैरिजन ऑपरेटर्स में? क्लियर प्रभात? अयाज, आकाश? Yes, sir, clear. Okay. Logical operators we have. देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन रिलेशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो ऑपरेंड्स होंगे वो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, जनरली नहीं होती है. आप रख भी सकते, इट विल नॉट जनरेट एन एरर, बट जनरली रिलेशनल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स. एंड ये जो ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स, सिमिलर टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दे रिटर्न्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं. ओके, so there are three logical operators in Python. There are three logical operators in Python. सबसे पहला है AND operator, next one OR operator, and then NOT operator. Python में अगर AND operator को रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्टली AND इस वर्ड का यूज किया जाता है. अगर आपने C++, जावा किया है तो वहां पे कुछ इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता था. पाइथन में इस सिंबल का यूज नहीं किया जाता. देन देयर इज अ और ऑपरेटर. C++ में इस सिंबल का यूज किया जाता था, दिस रिप्रेजेंट्स और ऑपरेटर. लेकिन पाइथन में डायरेक्टली वर्ड यूज किया गया है. ये रिप्रेजेंट करता है कि पाइथन में रीडेबिलिटी को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है. नॉट अदर लैंग्वेजेस में टिल्ड सिंबल का यूज किया जाता है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें किसी और सिंबल का यूज किया जाता है, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है. ओके, नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो दीज आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन. अब बात करते हैं पर्पस के बारे में. लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है mainly for two purposes: making decisions, first thing. Second, for controlling flow of the program. And इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है मोस्टली विथ कंट्रोल सीक्वेंसेस लाइक लूप्स के साथ, फॉर व्हाइल लूप्स, देन इफ एल्स कंडीशंस के साथ इनका यूज किया जाता है मोस्टली. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज क्या होता है. देखिए, फॉर गेटिंग अ सर्टन जॉब देयर आर सम कंडीशन, और लेट्स कंसीडर टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू देयर आर 2 कंडीशंस. फर्स्ट वन इज कैंडिडेट मस्ट हैव knowledge
of Python. This is the first condition. And second condition is must have 60% in graduation. Okay, must have at least कम से कम 60% होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. इफ कैंडिडेट इज हैविंग 59% देन वो क्वालिफाई नहीं होगा. बोथ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, दोनों कंडीशंस चाहिए. एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो सकता. ऐसे केसेस में एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है. टू टेक सम डिसीजन वी विल हैव कंडीशंस. दो कंडीशंस हो सकती है, 3, 4, 5, लेट्स कंसीडर 6 कंडीशंस है. एंड वी वांट ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. उसके बाद ही पर्टिकुलर चीज को अप्लाई किया जाएगा और परमिशन दी जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए. तो एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है ऐसे केस में. सभी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं देन गो हेड. ओके, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है एंड ऑपरेटर्स के साथ मोस्टली. तो यहाँ पे अगर बोथ कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है तो एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा ऐसे केसेस में. तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजर से पूछ सकते हैं. हम बात करेंगे कि कैसे इनपुट लिया जाता है, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ. इनपुट इस फंक्शन का यूज करके इनपुट लिया जाता है यूजर से. देन कोड्स के अंदर यूजर के सामने जो भी मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे. सो आई राइट हियर, डू यू नो पाइथन लैंग्वेज. This is the question for the user, and user will enter a character yes or no. Y if he knows, N if he does not know. So जो भी रिप्लाई आएगा यूजर से वो हम असाइन कर देंगे टू द आंसर वेरिएबल, यूजर का आंसर. सो ये हो गया पहली कंडीशन के लिए, पहला कंडीशन मुझे मिल गया. देन ऑल्सो आई विल टेक मार्क्स एज एन इनपुट. एंटर मार्क्स. अब मार्क्स जनरली जब भी आप काम करते हैं प्रोग्राम के ऊपर, तो अगर मनी रिप्रेजेंट करते हैं आप, अमाउंट रिप्रेजेंट करते हैं और मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्ट देम इनटू द फ्लोट टू अवॉइड द डेटा लॉस. सो कैसे करना है, जो भी इनपुट आएगा वो फ्लोट फंक्शन के अंदर पास कर देना है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, कट इट एंड पेस्ट इनसाइड द फ्लोट फंक्शन, दैट्स इट. सो जो भी यूजर से इनपुट आएगा वो फ्लोट में कन्वर्ट होके मार्क्स को असाइन होगा. सो वी हैव टेकन आंसर एंड मार्क्स इनपुट फ्रॉम द यूजर. एंड अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा. कुछ इस तरीके से कंडीशन लिखा जाता है. इफ दो कंडीशंस लिखनी है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, सो मैं लिखूंगा आंसर इक्वल्स, इज इक्वल ऑपरेटर का यूज किया जाता है टू कंपेरिजन y, अगर y होता है. देन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा एंड. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ स्टेटमेंट हियर, पहले मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ आपको यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर. तो ये हो गया पहला कंडीशन. देन एंड ऑपरेटर, दूसरा कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. ठीक है, दोनों कंडीशन लिखे हमने एंड ऑपरेटर के साइड में. अब मैं इसे प्रिंट करता हूं. सो आई विल कॉल द प्रिंट फंक्शन. एंड ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन बिकॉज ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमें कुछ. मैं इसमें लिख देता हूं एंड रन करता हूं. डू यू नो पाइथन लैंग्वेज, यस आई नो. एंटर मार्क्स, आई गॉट 80 मार्क्स. सो ट्रू, इट मीन्स यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू. अब मैं फिर से क्लीन करता हूं, फिर से रन करता हूं. नो आई डोंट नो पाइथन एंड मार्क्स मैंने 72 एंटर कर दिए. फॉल्स, यू कैन नॉट अपीयर. सो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. अब हम इफ कंडीशंस के साथ इसका यूज कर सकते हैं. इफ हमें पता है कि अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो ये यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड हियर. एंड देन देयर इज अ एल्स, ये एग्जीक्यूट होगा ऑन फॉल्सिटी. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये एक्सप्रेशन जो कि इवेल्युएट होगा. ये एक्सप्रेशन मैं इसे कॉपी करता हूं एंड ट्रू की जगह पर लिख देता हूं. अगर ये ट्रू होता है सेल से प्रिंट यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, एल्स you can't appear for the interview. Clear? Run. Do you know? Yes, I know. Enter marks 90.
यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, नो आई डोंट नो द पाइथन लैंग्वेज और मार्क्स मुझे मिले 10, you can't appear for the interview. Okay, so this is the actual use of logical operators. This is the example of this. Any question till here? So AND ऑपरेटर के केस में दो स्टेटमेंट आपको याद रखने। पहला स्टेटमेंट, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो पूरा AND का एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका याद रखने का, सभी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो फॉल्स मिलेगा। और एक और तरीका है, सभी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। सपोज मैं लिखता हूं यहां पे प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, तो आप बुलियन वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर? एंड वी गॉट ट्रू। अब मैं एक वैल्यू फॉल्स कर देता हूं, ट्रू एंड फॉल्स, तो इस केस में मिल जाएगा फॉल्स। देन फॉल्स एंड फॉल्स, एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है, एटलीस्ट एक भी वैल्यू, तो रिजल्ट में हमें फॉल्स मिलेगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं कुछ एक्सप्रेशन, फॉल्स एंड आई राइट हियर 10 इज ग्रेटर देन 20। सो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाएगा इनटू द बुलियन वैल्यू। 10 इज ग्रेटर देन 20, ये हो गया फॉल्स। सो दिस इज लाइक फॉल्स एंड फॉल्स। You can see false and false, that is false. अब मैं यहां पे true लिख देता हूं, true and 10 is greater than 20. Clearly it will return me false because ये false हो गया। अब मैं यहां पे less करता हूं तो अब ये true हो जाएगा, true and true, it will return me true. आप डायरेक्टली यहां पर इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं 10 पुट कर देता हूं। देखिए पाइथन में एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू। सो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू एंड ट्रू, मुझे ट्रू मिलेगा। सी हियर 10। अब 10 ही वैल्यू ट्रू होती है, तो मुझे 10 मिल गया इस केस में। ठीक है, ट्रू एंड 10। सो एक्सप्रेशन, रिमेंबर द थिंग, ट्रू एंड एक्सप्रेशन जब होता है, ट्रू एंड एक्सप्रेशन में आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू। सो इस केस में आपको एक्सप्रेशन और दैट वैल्यू मिलेगा, और दैट वैल्यू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सपोज यहां पे फॉल्स होता है, अब बताओ इस केस में क्या आएगा। यस बताओ प्लीज, अयास, प्रभात, आकाश। ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर मल्टीपल है यहां पे एंड 70, अब इस केस में क्या आएगा, सी हियर फॉल्स आएगा। अब मैं यहां पे ट्रू करता हूं, अब क्या आएगा, लास्ट वैल्यू विच इज 70। ओके, ट्रू एंड 10। सो ये कैसे इवेल्युएट होता है, सबसे पहले होगा ट्रू एंड 10, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, 10 एंड 70, एंड इस केस में 70 मिलेगा। ओके, सो सपोज मैं यहां पे 70 कर देता हूं एंड यहां 10 कर देता हूं। अब देखिए क्या होता है, मुझे 10 मिल गया। सो इट विल रिटर्न राइट साइड वैल्यू। ऐसा नहीं है कि वो लोवेस्ट और 70 हाईएस्ट है तो 70 रिटर्न किया, ऐसा नहीं है। सो सपोज इफ यू राइट हियर 70 एंड 10, इस केस में वो 10 ही देगा, 10 इवन इफ 70 इज ग्रेटर। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ये बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है एंड के केस में, लेकिन ऐसा नहीं है, इट विल रिटर्न राइट वाली वैल्यू, राइट की। ठीक है, एनी क्वेश्चन। सपोज मैं 0 लिख देता हूं
अब पाइथन में 0 कंसिडर्ड एज अ फॉल्स, तो मुझे फॉल्स मिलेगा, इट विल रिटर्न 0. ओके, 0 इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स, सो राइट वैल्यू भी रिटर्न करेगा हमेशा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? What if we'll write 0 and 70? Then also it should return 0, right? 0 Because it's and false. 70, इस केस में आई गेस इस 70 0 रिटर्न किया. ओके, 0 रिटर्न किया बिकॉज इट इज फॉल्स वैल्यू, फॉल्स है. Yeah. तो ये डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देता है, फॉल्स. तो पाइथन में 0 यानी फॉल्स ही होता है इंटरनली, सो इट रिटर्न 0. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव और ऑपरेटर. मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, नो वरीज. देन वी हैव और ऑपरेटर. और ऑपरेटर क्या होता है? जस्ट लाइक एंड ऑपरेटर ही होता है इसका वर्किंग, बट यहां पे अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो आपको फॉल्स मिलेगा. एक भी वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू हो जाएगा एक्सप्रेशन. सो आप इसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो इंटायर एक्सप्रेशन इज ट्रू. और एक और तरीका है इसे याद रखने का, अगर दोनों वैल्यूज और अगर सभी वैल्यूज फॉल्स है, इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, सभी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा. चलिए इसका आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं फास्टली. सपोज मेरे पास एज है एंड एज की वैल्यू है 21 एंड मार्क्स है स्टूडेंट के 70. अब मैं यहां पे कंडीशन लिखता हूं, एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और ऑपरेटर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60. क्या आएगा? ये कंडीशन ट्रू हो गई इस केस में और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, दोनों ट्रू. सो इस केस में मुझे ट्रू मिलेगा. आई विल प्रिंट हियर. दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहां पे दोनों हो रही है, सो इट रिटर्न ट्रू. अब मैं यहां पे इक्वल टू कर देता हूं, एज एग्जैक्टली इक्वल टू 18 होना चाहिए बट 21 है, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स और ट्रू. अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है इट विल रिटर्न ट्रू. सो हमारे केस में अगर हम सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, इस केस में अगर यूजर एक भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, एक भी कंडीशन ऐसी देता है जो कि इंटरव्यू के लिए चाहिए, यूजर को पाइथन पता नहीं है बट यूजर के पास मार्क्स से 80, एक कंडीशन ट्रू हो गई, सो एंड की जगह पर मुझे और लिखना पड़ेगा. अब क्लियर करके रन करता हूं. यूजर को पाइथन पता नहीं है, यूजर को लेकिन 80 मार्क्स है, सो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यू कैन स्टिल अपीयर फॉर द इंटरव्यू बिकॉज ये कंडीशन अब सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, अगर दोनों होती है तो भी यूजर इंटरव्यू के लिए अपीयर होगा, अगर दोनों में से एक होती है तो भी यूजर इंटरव्यू के लिए अपीयर होगा. अगर एंड यूज होता है इट मीन्स दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है, अगर एक भी कंडीशन यूजर सेटिस्फाई नहीं करता है तो यूजर कांट अपीयर फॉर द इंटरव्यू. समझ गए डिफरेंस बिटवीन एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर? ओके, अब चलिए और ऑपरेटर का यूज. अब मैं यहां पे 3 कंडीशंस लिखता हूं, 10 इज ग्रेटर देन 20 और 10 इक्वल्स 10 और अ वैल्यू 70 एंड इसे मैं प्रिंट करता हूं. बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या सोच रहे हैं आप? ट्रू. और ट्रू बिकॉज ये कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू हो गई, इट विल रिटर्न मी ट्रू. अब मैं यहां पे नॉट इक्वल रख देता हूं, इस केस में इट रिटर्न 70. सो रिमेंबर 70 इज अ ट्रू वैल्यू. ओके, लेकिन इस केस में ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज 70 यूज किया गया है यहां पे डायरेक्टली, सो इट विल रिटर्न 70 राइट की वैल्यू.
सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं 10 और 70, इस केस में मुझे 10 मिल गया। जस्ट अपोजिट ऑफ एंड के केस में हमें राइट वाला वैल्यू मिलता था, यहां पे और के केस में हमें लेफ्ट वाला वैल्यू मिलेगा। यहां पे मैं 80 रख देता हूं एंड रन करता हूं, आई गॉट 80। सो रिमेंबर दिस थिंग, एंड ऑपरेटर के केस में हमें राइट वाला वैल्यू मिलता है और ऑपरेटर के केस में हमें लेफ्ट वाला वैल्यू मिलता है। यहां पे अगर मैं करता हूं 10 एंड 70 तो मुझे 70 मिलेगा, बट 10 और 70 करता हूं तो इस केस में मुझे 10 मिलेगा। एनी डाउट? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? नो सर। नेक्स्ट वी हैव नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर इट जस्ट निगेट द रिजल्ट, ये रिजल्ट को निगेट कर देता है। अब सपोज मेरे पास नंबर है 10 एंड मैं यहां पे लिखता हूं कंडीशन num इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। लेकिन मैं इसे नॉट से प्रीसीड कर देता हूं एंड अब मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख देता हूं नॉट ऑफ num इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो होगा क्या कि ये कंडीशन हो गई ट्रू। इट मीन्स नॉट ऑफ ट्रू, निगेट करो ट्रू वैल्यू को एंड इट विल रिजल्ट इनटू फॉल्स। ओके, सो आई गॉट अ फॉल्स हियर। अगर नॉट ऑफ फॉल्स होता है तो मुझे रिटर्न में मिलेगा ट्रू, और नॉट ऑफ ट्रू होता है तो मुझे फॉल्स मिलेगा। सो ये चीजें बहुत यूजफुल है व्हेन यू डिबग अ कोड। आपको डिबगिंग करने के लिए बोला गया है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि num की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। एंड जनरली इन कंडीशंस का यूज किया जाता है कंडीशनल्स में। तो इफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है, ये चीजें पता लगाने के लिए आपको इन कंडीशंस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और कोडिंग करते वक्त भी लगेगा। सो ये थे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन के, एंड, और, एंड नॉट। आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, इन सभी ऑपरेटर्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड। मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। बिलो आर कंडीशंस फॉर जॉब इंटरव्यू। पहली कंडीशन है कि एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 22 एंड मार्क्स शुड बी, राइट हियर, marks should be greater than 75. Then next condition, country is not mandatory, can be anything. Fourth, candidate should not be married. अब इन 4 कंडीशंस के लिए हमें लिखना है लॉजिकल एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे? सो मेरे पास कुछ वैल्यूज है। एज की वैल्यू 22, हम यूजर से इनपुट लेंगे और कहीं और से आ जाएगी। मार्क्स से 88 कंसीडर। कंट्री है इंडिया, एंड मैरिड ए पर्सन, ट्रू। तो इस केस में मुझे एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है टू चेक वेदर अ पर्सन can appear for the interview or not. So simply age should be greater than or equal to 20. So I'll write here age should be greater than or equal to 20. पहला condition. Then marks should be greater than 75. सभी condition satisfy होनी चाहिए. I'll write here and
marks should be greater than 75. So marks should be greater than 75. Then next, country is not mandatory. So I'll write here or country is India. India हो सकता है, अगर false भी हो गया तो बाकी true हो जाएंगे, कोई problem नहीं. So I just want to show you that we can combine these all logical operators into one. Then again, and candidate should not be married. So I'll write here not of. कैसे लिख सकते हैं? Not of. I'll write here married. मीन्स अगर ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा पूरा, क्योंकि कैंडिडेट शुड नॉट बी मैरिड. अगर मैरिड है तो ये फॉल्स हो जाएगा. सो ये सभी कंडीशंस एंड ये और ये तीनों कंडीशंस मैंडेटरी है इस केस में. एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए, मार्क्स ग्रेटर देन 75 होना चाहिए एंड पर्सन शुड नॉट बी मैरिड. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए. और कंट्री इंडिया हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इस केस में अब मैं रन करता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, पहले इसे कट कर लेता हूँ एंड देन प्रिंट कर लेता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को. एंटर. ओके, असाइनमेंट हो गया. यहाँ पे इक्वल होना चाहिए एंड इट रिटर्न मी ट्रू. पर्सन कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू. बट अगर कंडीशंस क्या थी, कैंडिडेट शुड नॉट बी मैरिड. ओके, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हुआ, कट करता हूं और यहाँ पे रख देता हूं. सिंटैक्स एरर. इट इज रिटर्निंग मी 2. एज इज ग्रेटर देन 20 ट्रू हो गया, ग्रेटर देन 75 ट्रू हो गया. ओ नॉट ऑफ मैरिड ये हो गया फॉल्स. सो फॉल्स होने पर ये पूरा हो गया फॉल्स. फॉल्स और कंट्री इज इक्वल टू इंडिया ट्रू. फॉल्स और ट्रू. ओके, ये कैसे इवेल्युएट होगा मैं बताता हूँ आपको. मेरे पास ये कंडीशंस है. तो एज इज ग्रेटर देन 20 कंडीशन हो गई ट्रू. सो ट्रू. एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 ये भी हो गया ट्रू. एंड नॉट मैरिड, नॉट ऑफ ट्रू, इट बिकेम फॉल्स. और कंट्री इज इक्वल टू इंडिया ट्रू. सो सबसे पहले ट्रू एंड ट्रू होगा ट्रू, देन ट्रू एंड फॉल्स होगा फॉल्स, एंड देन फॉल्स और ट्रू होगा ट्रू. तो या आप ये करके देखिए. बट the thing here is we can use this all three logical operators in our one expression. In combination we can use it. Any questions? No questions? So we will stop here guys.